morning students. Today we are going to start dissolution of partnership from the last unit of book partnership, right? Dissolution of a partnership firm. What is the meaning of dissolution of firm? Business of the firm is discontinued. आप अपनी फर्म बंद कर रही हैं, बिजनेस बंद कर रही हैं, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, इट मीन्स सब चीजें क्लोज हो रही हैं. सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अकॉर्डिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ऑफ फर्म इज discontinued. Economic relationship among partners, that is among partners, comes to an end. It means कि जो agreement, जो partnership agreement है partners में, that comes to an end, वो stop हो रहा है, business बंद हो रहा है. All assets are realized, that is sold. सारी assets बेच दो. All liabilities are paid or liabilities paid off. That means full and final settlement of account. If there is any shortfall in meeting the outside liabilities, it is met by the partners from their private assets. अगर फर्म की assets से outside liabilities meet out नहीं हो रही, then would utilize partners' private assets to meet out the outside liabilities. So dissolution of firm means business, partnership agreement, everything comes to an end. All assets are sold. All liabilities are paid. If still there is any shortcoming to pay the outside liability, that will be covered from the private assets of the partner. I hope the title is justified to you. Note down this so that we will proceed further. Hurry up, bachcho. Now, beta, we will discuss modes of dissolution of firm. There are 5 types. 5 modes to dissolve the firm by mutual agreement. If all the partners are agreed to dissolve the firm, it means the firm can take the decision to dissolve the business and the partnership as well. Compulsory dissolution. Compulsory dissolution में बच्चे, if any partner is insolvent and the business is unlawful, अगर कोई भी partner insolvent हो गया, insolvent partner, any one partner or all the partners are insolvent. Second, if the business is unlawful, अगर business जो है वो unlawful है, वो law के according नहीं है, that is a compulsory dissolution of the firm. By notice, in the express form, right, the partner can serve the notice to all other partners that he wants to dissolve the firm. By happening of any event, what kind of event? आपका venture expire हो गया, time period over हो गया, जिस वेंचर के लिए आपने किया था उस वेंचर का टाइम पीरियड ओवर, राइट. वेंचर कंप्लीट, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, पहला कि टाइम पीरियड एक्सपायर है, सेकंड को कंप्लीट हो गया, थर्ड डेथ ऑफ एनी पार्टनर, फोर्थ partner is an insolvent, insolvency of partner. On the happening of any one event, there can be the dissolution of firm. Time period expired, venture is completed, death of a partner or insolvency of partner. Then dissolution by court. Court भी आपकी firm को dissolve कर सकता है if any partner is of unsound mind. कोई पार्टनर जो है उसका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो फर्म क्लोज करनी पड़ेगी, राइट. पार्टनर इज इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज. अब वो ड्यूटीज परफॉर्म करने के कैपेबल नहीं रहा, फर्म कोर्ट जो है वो फर्म डिसॉल्व कर सकती है. गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट, कोई गलत काम किया है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई गलत काम किया है तो भी कोर्ट उसको क्लोज कर सकती है, राइट. कोर्ट फाइंड द डिसोल्यूशन इज जस्टिफाइड, कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट में इस फर्म को बंद करना ही सही है, तो भी कोर्ट
कोर्ट जो है डिसॉल्व कर सकती है फर्म को। इफ द बिजनेस इज कंटिन्यूअसली सफरिंग विद द लॉसेस फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स, तो जो सिक यूनिट हो जाता है कोर्ट उसके लिए ऑर्डर दे सकती है कि इस यूनिट को आप क्लोज कर दो, बंद कर दो। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड बाय द पार्टनर और पार्टनर्स, अगर कोई धोखाधड़ी की गई है तो भी जो है कोर्ट ऑर्डर दे सकती है टू डिसॉल्व द फर्म। फर्स्ट है आपका बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, all parties decided to dissolve the firm. Second, compulsory, if any partner is insolvent or business is unlawful, notice by serving the express notice to the other partners. Happening of event, time period expire है, completion हो गया वेंचर का, डेथ होगी पार्टनर की, और any partner is insolvent. Resolution by the court, partner unsound है, incapable है, misconduct है, firm continuously loss suffer कर रही है, कोर्ट को जस्टिफाई लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में कि इस फर्म को क्लोज कर देना चाहिए, राइट। एंड देयर इज ब्रीच ऑफ इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट ब्रीच हुआ, उसमें कुछ धोखाधड़ी है, तो कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। तो दीज आर द 5 मोड्स, 5 टाइप, 5 वेज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म: म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, बाय हैपनिंग ऑफ इवेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, राइट। Note down this very important topic. Hurry up. Now, we will talk about few issues which arise at the time of dissolution. First issue, settlement of account according to section 48. Second, payment of firm's debt and private debt. I am talking about first issue, settlement of account. In settlement of account, there are again two issues. Issue A, treatment of losses. Issue B, application of assets. If there are losses, firstly meet out from profits. अगर previous year के losses से पहले profits में से meet out करो, profit में से नहीं आ रहे, then capital में से. Still there are losses, then partner will share it. In profit sharing ratio. ये ट्रीटमेंट होगा आपका अकाउंट में. If there are losses, firstly it will meet out from profits, then from capital, then partner will share it in the profit sharing ratio. Now application of assets. आप assets को जब सोल्ड करोगे, उसको रियलाइज करोगे, जो रियलाइज करके आपको एसेट बेच के जो पैसा मिला है, जो अमाउंट आया है, हाउ दैट विल अप्लाई, कैसे उसको यूटिलाइज करना है. फर्स्ट, टू पे फर्म्स डेट ऑफ थर्ड पार्टी. जो थर्ड पार्टी से फर्म ने डेट लिया, सबसे पहले आप वो पे कर दो, राइट. देन पार्टनर्स के लोन एंड एडवांसेस. जो फर्म ने पार्टनर से लोन और एडवांसेस लिए हैं, फर्म विल पे दैट, राइट. देन पार्टनर्स कैपिटल. देन इफ स्टिल प्रॉफिट इज देयर, दैट विल divide among partners in profit sharing ratio. बच्चे, two issues arises at the time of dissolution of partnership firm. First, settlement of accounts according to section 48. According to section 48 में first issue है treatment of losses, section 48 subsection A. Application of asset, section 48 subsection B. अगर losses हैं, firstly meet out from profits, then from capital. If there are still losses, the partner will share it in the profit sharing ratio. How you will utilize the amount and apply the amount of assets sold? Firstly to pay the third party debt, then partner के loan and advances, then partner की capital. Still there is profit that will be divided among the partner in the profit sharing ratio. This is about the first issue. Now I am talking about payment of firms debt and firms private debts. See बच्चे, debts which are firm owes to outsider. जो firm दूसरों से उधार ले रही है, that are the firm debts. And which partner
ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, जो पार्टनर ने लोगों से ओ किया, उधार लिए, दैट आर द प्राइवेट डेब्ट्स. तो फॉलोइंग आर द प्रोविजन अप्लाई फ्रॉम द फर्म्स डेब्ट एंड द पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट. फर्स्ट, फर्म की प्रॉपर्टी किसके लिए अप्लाई होगी? फर्म डेब्ट्स के लिए. आप जो फर्म की प्रॉपर्टी है उससे क्या मीट आउट करोगे? किस चीज को आप पे करोगे? आप फर्म के डेब्ट को पे करोगे. प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द प्राइवेट डेब्ट, इफ सरप्लस देन फॉर द फर्म डेब्ट. जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म डेब्ट के लिए यूटिलाइज होगी, जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट डेब्ट के लिए. पार्टनर की प्राइवेट डेब्ट पे करने के बाद स्टिल फर्म के डेब्ट पेंडिंग है. जो पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है फिर वो फर्म्स के डेब्ट पे करने के लिए यूटिलाइज होगी. इन द प्रीवियस पॉइंट आई टोल्ड यू कि इफ स्टिल देयर आर एनी लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, दैट विल बी मीट आउट फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर. फॉलो माय पॉइंट. तो फर्म्स डेब्ट क्या है बच्चे? जो फर्म ने बोरो की है. फर्म कौन है? ज्वाइंटली द पार्टनर्स, जो पार्टनर ने इकट्ठे होकर फर्म क्रिएट की, उन्होंने बोरो की है. फर्म की प्रॉपर्टी पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स के लिए होगी. अगर फर्म डेब्ट पे करने के बाद एक्सेस बचती है तो पार्टनर उसको प्राइवेट डेब्ट के लिए यूटिलाइज कर सकती है. राइट. प्राइवेट डेब्ट्स, प्राइवेट डेब्ट इज दैट ओज बाय द प्राइवेटली पर्सनली बाय द पार्टनर. जो पार्टनर ने खुद उधार लिया, अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर दैट. Concerned partner is personally liable for the private debt. Right? Private property is utilized for the private debts. Still, there are private debts. When the firm properties, we say that if there are balance, that balance will be used for the private debt. Firm की property firm debt के लिए, partner की property private debt के लिए. Firm के debt के पे करने के बाद firm की property still there, partner can utilize it for private debt. Private property है, firm की debt pending है. After paying the private debt, पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म डेब्ट के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो. बट फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? फर्म प्रॉपर्टी फॉर फर्म डेब्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट डेब्ट ऑफ द पार्टनर. तो दीज आर द टू इश्यूज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. सेकेंड, फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में लॉसेस का ट्रीटमेंट आई टोल्ड यू, और जो एसेट पेज की अमाउंट रिलाइज कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट आई टोल्ड यू. देन आई टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्म डेब्ट्स एंड द प्राइवेट डेब्ट. No problem. Hurry. Now, bete, accounting on dissolution of partnership firm, we will make this 5 type of account. First, realization account. Second, loan by partner account. Third, loan by firm to partner account. Fourth, partners capital account. Fifth, bank or cash account. Realization account, loan by partner account, loan by firm to partner account, partners capital account, bank or cash account. These 5 types of accounts will be maintained for the accounting treatment of dissolution of partnership firm, and we will discuss it one by one. First of all, we will discuss the realization account and the journal entry for realization account. Afterward, we will discuss one by one all the accounts. Right? Note down it in your notebook. हरिया बच्चे. Now बच्चे we will
फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये अपने बुक वैल्यू पे यहाँ पर प्लेस करें। नाउ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से, क्योंकि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स से डिडक्ट होते हैं, बट है तो ये लायबिलिटी ना प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट विल कम हियर। ये आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में प्लेस करोगे, बट प्रोविजंस की कोई पेमेंट नहीं होती है। फॉलो मी पॉइंट, ये जो एसेट्स आपने यहाँ पर बुक वैल्यू में प्लेस की है, आप जब इन एसेट्स को सेल करोगे, सेल करोगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय बैंक और कैश अकाउंट। ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को किस वैल्यू में आपने सेल किया है, दैट इज द मार्केट वैल्यू या सेल प्राइस, जो भी आपने सेल की है यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, दैट विल कम हियर इन दिस साइड। एसेट्स को बैलेंस शीट से यहाँ प्लेस किया और क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में सेल्स होल्ड ऑफ कर दिया, रियलाइज कर दिया। लायबिलिटीज को रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में प्लेस किया, प्रोविजन, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, ये सारी लायबिलिटीज आपने कहां पर प्लेस कर दी, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। और आप इनको पेड ऑफ कैसे करोगे, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लायबिलिटीज इधर पेड ऑफ होंगी और एसेट्स इधर रियलाइज होंगे। फॉलो माय पॉइंट, तो टू बैंक एंड कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स पे ऑफ, बिल पेपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड बैंक लोन। जो पार्टनर का लोन होता है बच्चे, कौन सा लोन, थर्ड पार्टी का लोन को आप कंसीडर करोगे। जो थर्ड पार्टी का लोन है, थर्ड पार्टी कौन होगी, पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का कजन, पार्टनर का ब्रदर, अगर उनसे लोन किया है दैट इज थर्ड पार्टी लोन, वो आप यहाँ प्लेस भी करोगे, उधर उसकी पेमेंट भी करोगे। तो थर्ड पार्टी का लोन तो ट्रीट होगा, बट अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन कभी भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रीट नहीं करोगे, उसके लिए सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा। तो आपने लायबिलिटीज इधर पेड ऑफ कर दी। टू बैंक एंड कैश, अगर आपके पास कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो आप पे कर दोगे टू बैंक और कैश यहाँ पर, राइट। ये आपकी एसेट्स आ गई। गॉट माय पॉइंट। सपोज किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर कर लिया, सपोज फर्नीचर हाफ आपने रियलाइज सेल कर दिया और हाफ फर्नीचर आपके पार्टनर ने ले लिया। जो पार्टनर आपकी एसेट्स टेक ओवर कर रहा है वो उस पार्टनर के पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट में आप शो करोगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज पेड ऑफ कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि पर्टिकुलर लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स हाफ कैश में पे हुए, हाफ एक्स पार्टनर ने पे किए, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दोनों साइड का टोटल करेंगे एक प्रॉफिट, तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, इफ लॉस तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आप उसको प्लेस करेंगे, राइट। इसको कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में आपने इसको डिवाइड करना है। एसेट्स की बुक वैल्यू डेबिट साइड में, पेड ऑफ और टेकन बाय पार्टनर क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज की बुक वैल्यू क्रेडिट साइड में, पेड ऑफ और टेकन बाय पार्टनर डेबिट साइड, देन यू विल राइट प्रॉफिट और लॉस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट। एंड नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री। पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर अकाउंट होता है, बट इट इज इजी टू मेक द जर्नल एंट्रीज। सपोज एसेट्स प्लेस करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर। अगर आप रियलाइज कर रहे हो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज की एंट्री है, जो भी लायबिलिटी है, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लायबिलिटीज पे कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड कैश। प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लॉस पार्टनर कैपिटल की डेबिट में और प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में। वेरी इजी टू पास द जर्नल एंट्री, वेरी इजी टू मेक द रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल एसेट प्लेस्ड हियर, सोल्ड ऑफ एंड रियलाइज्ड दिस साइड और टेकन बाय पार्टनर। ऑल लायबिलिटीज आर प्लेस्ड इन द क्रेडिट साइड, paid off in the debit side or taken by partner in the debit side, and the net balances will be profit and loss. If profit, realization debit side; if loss, realization credit side. Follow my point. Note down this on your notebook here so that we will proceed further. चलो बच्चे इसको नोट करो। Now we will discuss the entries for realization account, accounting entries for closing the asset account, realization account debit to assets, provision or reserve against the assets। आपके पास इन्वेस्टमेंट है रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, क्योंकि रिजर्व्स लायबिलिटी है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आएंगे।
राइट। डेटर्स रियलाइजेशन की डेबिट में एसेट, और अगर उसका प्रोविजन है दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एनी फिक्टिशियस एसेट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, deferred revenue expenditure that is advertisement suspense account, all this will come in the partner capital account. This will never come in the realization account. Now current account balances that will be transferred to partner capital account. Loan to partner that will be transferred partner capital to loan to partner capital account. For closing of the current liabilities, realization की credit side में liabilities will be there. Then liabilities to the outsider means which we have to pay to the third party. Suppose important points, liabilities to the third party do not include the accumulated profit. Hence these accounts are not transferred to the realization account but transferred to the partner capital account. For example, any reserves, credit balance of profit and loss. तो ये जो accumulated profit है ये थर्ड पार्टी के नहीं होते, ये इंटरनल के होते हैं, पार्टनर्स के होते हैं, और वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. Loan by partner account, it will not the part of the realization account, separate account will be open because partner are not the third party. Liabilities due to the partner for capital and current account, this will be not the third party, this will not transfer to the realization account. Follow my point? Now we will discuss the workman compensation reserve. See बच्चे, जैसे आपको मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन की डेबिट साइड में एज ए एसेट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में एज ए लायबिलिटी. सेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज द लायबिलिटी, नो लायबिलिटी, नो क्लेम इज देयर. तो आप सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में. सपोज एनी क्लेम इज देयर तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में, रेस्ट पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे. अगर कोई क्लेम है, पार्शियल अमाउंट का है, फुल अमाउंट का है, राइट, और मोर देन अमाउंट का है, where you will transfer it to the realization account credit side. Now after this we will discuss one more point, accounting for unrecorded assets and liabilities. Unrecorded assets or liabilities are those which are exist but not shown in the balance sheet, in the books of account. जो exist तो करती हैं but books of account में नहीं है, right? ड्यू टू सम चांस ऑफ रिटर्न ऑफ और ओमिटेड टू बी अकाउंटेड, हम भूल के उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना, बट वो एग्जिस्ट कर रही हैं. तो दैट एसेट्स और लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ वी विल ट्रीट दैट? व्हेन अमाउंट इज रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट को हमने प्लेस नहीं किया रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, बट इससे अमाउंट रियलाइज्ड हो रहा है, तो इट विल बी डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट बीइंग इन द नेचर ऑफ गेन. अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो पार्टनर कैपिटल की डेबिट, रियलाइजेशन की क्रेडिट. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दैट विल बी इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, सॉरी, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में और कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में. एंट्रीज नॉट पास इफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज अगेंस्ट द रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. एक एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट को सेट ऑफ किया गया है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए, तो इट मीन्स नो एंट्री विल बी कंसीडर इन द रियलाइजेशन अकाउंट एज वेल एज इन द कैपिटल अकाउंट. आई एम रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स अगेन. बच्चे, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्ड नहीं की, तो इट मीन्स रियलाइजेशन की डेबिट साइड में नहीं है ये, बट इसका अमाउंट रियलाइज हो रहा है, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में डाल दो बच्चे. पार्टनर ले रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट, रियलाइजेशन की क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल की डेबिट. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ऑफ कर रहे हो रियलाइजेशन की डेबिट में. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, रियलाइजेशन की डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट. अनरिकॉर्डेड एसेट के अगेंस्ट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आप सेट ऑफ कर रहे हो, तो इट मीन्स नो एंट्री इज देयर. नाउ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, टेकन बाय पार्टनर, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में बट बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट. एसेट गिवन टू क्रेडिटर, नो एंट्री. सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, रियलाइजेशन की डेबिट, कैश और बैंक. इफ पार्टनर एग्रीज टू सेटल द लायबिलिटी, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. पॉइंट्स टू रिमेंबर, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी. The realization of tangible assets like furniture, vehicle, debtors, it is assumed that such assets have not realized any amount.
राइट, सेटलमेंट ऑफ एनी, अगर आपके पास कोई टेंजिबल एसेट है और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि इसकी रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है, तो इट मीन्स 0 है। और लायबिलिटीज के लिए अगर रियलाइज पेड ऑफ करने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो इट इज इम्प्लाइड कि लायबिलिटी तो पे करनी ही करनी है, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट। फॉलो माई पॉइंट। और आपका नट शेल में क्या है, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में एक्सेस बैलेंस है, तो इट विल बी प्रॉफिट प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इफ debit side of realization exceed the credit, it means it is a loss, credit side of realization account. Here till here we discuss the all main important topic of the realization account, and now in the next part we will start the numerical portion for the dissolution of partnership firm step by step. If till here if there is any query, kindly let me know. Thank you बच्चे।